Guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 3 of Cashbook we are doing. And actual purpose of Cashbook is to create two different ledger at the same time. And those two ledgers we are related with are cash account and bank account. Procedure is very same. You are looking at this question. We have different transaction uh, at the same time for a single month from September 1 to September 30 ये transactions हैं और normally each and every accountant does the same thing. Vouchers he receive daily. These are a sort of vouchers. Vouchers mean a simple detail of a transaction would be given to the accountant. And what will be the responsibility of accountant? He will receive these vouchers in a data form and will convert into a usable information और वो इनको कन्वर्ट करेगा एक ऐसी इंफॉर्मेशन के अंदर जिससे आप कॉन्क्लूसिव को रिज़ल्ट क्रिएट कर सकते हैं. हमारा आज का काम क्या है? हम ये ट्रांजैक्शंस चेक करेंगे. आपको ये नज़र आ रहा है कि ये एक ही महीने की ट्रांजैक्शन है, सितंबर 1 से लेकर सितंबर 30 तक, और डिफरेंट ट्रांजैक्शन है जिसमें कोई एसेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है. हम इसको फॉलो करेंगे. वी विल मेक अ जर्नल. ईच एंड एवरी डेट विल हैव इट्स ओन जर्नल एंट्री और फिर हम इन जर्नल एंट्रीज़ को कैश बुक में कन्वर्ट करेंगे. अब उसके लिए आपके पास एक परफॉर्मा है जिसको आप फॉलो करते हैं. देखें, ये आपके पास कैश बुक का चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर 3 है शायद. और यूँ आप सारी जर्नल एंट्रीज़ यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और इन जर्नल एंट्रीज़ के सामने आपको दो साइड्स नज़र आ रही हैं. वन साइड इज़ डेबिट, सेकेंड इज़ क्रेडिट. बोथ कैश एंड बैंक आर प्रेजेंट ऑन डेबिट साइड. Cash and bank are also present on credit side. What does that mean? You will follow the journal entries if cash is present over here. Same cash and bank will be present over here. The difference is when you will see cash on debit side, you will paste cash on debit side in your cash book. If cash is present on credit side, you will paste over here credit side of cash book. बस ये एक सिंपल सा काम है. You will have to understand it कि यहाँ पर कैश और बैंक को बस देखना है. देयर मे बी सेवरल अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन जर्नल एंट्री बट यू वोंट फॉलो. यू विल फॉलो ओनली टू वर्ड्स, कैश एंड बैंक. दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड डबल कॉलम कैश बुक. अगर कुछ क्वेश्चंस में इफ़ यू विल फॉलो ओनली कैश और ओनली बैंक, that would be single column cash book. And now in this question you are following double column cash book where you will see two factors, two elements, cash and bank. And you will post what? Debit do debit and credit do credit. If cash and bank are present on debit side of journal, you will post cash and bank on debit side. If cash and bank are present on credit side of the journal, you will post cash and bank on credit side. Hopefully you people have understood. It's a simple thing. The main procedure is to understand the journal entry. If journal entry is accurate, there is no way you can make कैश बुक इन अ रॉन्ग वे. आप अगर जर्नल एंट्रीज आपकी प्रॉपर हैं तो हर सूरत में आपकी कैश बुक ठीक निकलेगी, बिकॉज कैश बुक इट्स अ सिंपल थिंग. वहाँ डेबिट है तो यहाँ पर भी डेबिट साइड पे लिखना है. Alright, hopefully you people have understood the theory or the background of the question. Let's start the question. यहाँ पर जो सबसे पहली एंट्री है जहाँ से आपने स्टार्ट लेना है, इट इज़ सितंबर 1. आप डेट पहले पुट कर दें जनरल एंट्री के अंदर कि हम सितंबर 1 से एसोसिएटेड हैं. ऑलराइट, और क्या हुआ है वहाँ पर आपके पास कैश बैलेंस है. सिर्फ जिस चीज़ को आप फॉलो कर रहे हैं दैट इज़ जस्ट कैश बैलेंस. इट मीन्स कैश इज़ नॉट कमिंग इन, कैश इज़ नॉट गोइंग आउट, देर इज़ नो ट्रांजेक्शन, वी आर नॉट रिसीविंग कैश, वी आर नॉट पेइंग कैश, जस्ट अ बैलेंस. Still, if you are not making any transaction and you have cash in your hand, it is favorable. Cash is your asset, and when asset is favorable, it should be written on debit side. So what you will do? You will write cash on debit side. Beside this, you understand that cash is not going out, cash is not coming in, you are not receiving or paying cash. It is just some of the cash present in your hand. So what you will do? You will mention it as a balance because second information is not available as you haven't received cash and you haven't paid the cash. तो कैश आपके पास ही पड़ा हुआ है, ना आप किसी को दे रहे हैं ना ले रहे हैं. इट मीन्स इट्स अ बैलेंस. अब हम इसकी अमाउंट देखते हैं कितनी है.
that is 1,35,400. What you will do, 1,35,400 दोबारा देख लें. Okay, you will write over here and same amount you will write on credit side. जगह पहचान लें किधर लिख रहे हैं. फर्स्ट एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई. अच्छा, कीप इट इन माइंड वी आर नॉट राइटिंग नरेशन ओवर हेयर. जहाँ तीसरी लाइन होती है वो नरेशन होती है. तो हमने आज का जो पर्पज़ है एक्चुअली वो जनरल नहीं है. आज का पर्पज़ हमें ये कैश बुक बनानी है, तो इसलिए हम जनरल एंट्रीज़ को शॉर्ट करके कंप्लीट करेंगे और साथ ही हम उनको लेजर में पोस्ट करेंगे, कैश बुक में पोस्ट करेंगे. फर्स्ट की एंट्री ख़त्म हो गई. अब नेक्स्ट आवर टारगेट इज़ टू सी सेकेंड एंट्री. एंड व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर देयर, ओपनिंग करंट अकाउंट with HBL. What you have done, opening a current account and deposited cash therein. So what you have done, you have opened an account. How you will open your account, you will pay some amount and deposit amount into your bank account, with which your bank account will be opened. It means cash is going out. The first thing you have heard is cash is going out. Cash is your asset. When you are paying cash to your bank, it means cash is decreasing and asset is decreasing. Due to decrease in asset, you will credit asset. Due to decrease in asset, you will credit it. That is why you are writing name of cash on credit side. Where this cash has gone into the bank. Again, bank is your asset. When you will put your amount into your bank account, amount present in your bank account will be increased. In this way your asset will be increased. Increase in asset should be written on debit side. So what you will do, you will write your bank account on debit side. Transaction की date हम पता करते हैं, that is 2. So you will write here date 2. And now we will see how much amount have been deposited into the bank account. It is 1 lakh. So you will put 1 lakh rupees on debit side and same amount you will put on credit side. In this way second transaction has been completed. Now let's see what is happening next. What you have, number 6, cash sales. Now please translate in a proper way. Normally in class when I ask this question, what is meant by cash sale, some of the students used to say that we have sold our cash. It's not cash which has been sold out. It is actually goods which are sold for cash. That means you have sold your commodities and immediately you have received your cash. So what does that mean? You have sold your commodities. Sold commodities mean goods are going out. Goods, inventories or stocks are actually those are your assets. Since you are selling it, it seems you should write goods over here or inventory. What you can do, you can write inventory over here or stock over here because stock is decreasing. In accounting, we do not write goods, inventory or stock. Instead of goods, we write what working we are doing. And what working we are doing is sales. So you will write in place of goods, inventory and stock, just sales. So goods are going out, and since it is cash sales, goods are going out and what is coming in, that is cash. Cash is your asset. When you are receiving your cash, cash is increasing, ultimately asset is increasing. Increase in asset should be debited. So you will write name of cash over debit side. इसकी ज़रा डेट चेक कर लें. 2 के बाद क्या थी? अच्छा, हमने 6 की एंट्री कर ली है. 1 सेकेंड. अच्छा, 2 के बाद एक्चुअली जो एंट्री का नंबर बन रहा था वो 5 था और 5 के आगे परचेज फर्नीचर लिखा हुआ. हमने कैश सेल पढ़ लिया, वो 6 है. अब क्या करें, मैंने उस एंट्री को आगे ट्रांसफ़र कर दिया, कैश टू सेल वाली एंट्री को, और उसकी डेट है 6. तो मैं साथ में यहाँ डेट मेंशन कर देता हूँ 6. इसकी अमाउंट भी आप देख लेते हैं. कैश सेल की अमाउंट कितनी है? 2000. सो यू विल पुट 2000 ओवर हेयर एंड सेम अमाउंट 2000 वुड बी प्लेस्ड ओवर हेयर. अब 6 की एंट्री की. 2 के बाद एक्चुअली जो एंट्री थी दैट वाज 5. कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, कम से कम इस जगह के ऊपर, क्योंकि यहाँ तो मैं एडिट कर सकता हूँ, लेकिन अगर अपने कॉपी पे ऐसे किया होता तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट. अच्छा जी, इधर आप क्या कर रहे हैं? परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक.
हो सकता है कि आपने नोट कर लिया हो इसको। अगली एंट्री आप क्या कर रहे हैं, यू हैव परचेज्ड फर्नीचर एंड पेड बाय चेक। व्हेन यू विल बाय फर्नीचर व्हाट वुड बी कम इन, what is coming in, that would be furniture is your asset. When you are buying an asset, it means asset is increase in asset should be debited. So what you will do, you will write name of furniture on debit side, and the reason is what, you have bought furniture is asset is increase in asset should be debited, so you have written name of your asset on debit side. Second thing is what, you have purchased this furniture by check. You haven't paid cash on spot, you have drawn a check. And what will happen, the person who had bought the furniture from you, he had received a check, he will go to your bank account, will deposit that check into the, will present that check to the bank, and will withdraw amount from your bank account. So amount present in your bank account would be decreased means your bank account is your asset, amount had withdrawn, amount is decreased mean asset is decrease in asset should be credited. So you will write name of your bank account on credit side. So what I have said, you have bought that furniture, issued a check, that check would be received by the person from whom you have bought the furniture. He will present that check to your bank, will withdraw amount present in bank would be decreased. It means your bank account would be decreased, bank is your asset is decrease in asset should be credited. So you have written the name of bank on credit side. आपने फर्नीचर परचेज किया है तो 9,000 रुपये का फर्नीचर परचेज किया, यू विल राइट 9,000 ओवर हेयर एंड 9,000 same amount over here, and after 2 date was 5, so you have written 5 over here. Clear? Ab after 6 what is happening, you are now following 10. Received from Suhail cash 1,000 and check rupees 6,000. Actually these are two different entries, and you can make 3 entries or you can make single entry, both are possible. यहाँ पर आप चेक कीजिए कि बात क्या हो रही है, दो अलग अलग चीज़ों की डिस्कशन हो रही है। अच्छा ये एक तरफ से छोटा हो जाता है, एक तरफ से बड़ा। आप यूँ ना करें कि इसको सिर्फ एक वक्त में एक एंट्री करें, रिसीव्ड फ्रॉम सुहेल कैश 1,000 और ये एंट्री नंबर है 10। आप ऐसे करें, इसका 10 का आप समझें कि ए पार्ट कर रहे हैं और आपने पैसे रिसीव किए हैं सुहेल से, सिर्फ इतनी एंट्री हमने करनी है, रिसीव्ड फ्रॉम सुहेल कैश। अगर आपने कैश रिसीव किया तो व्हाट इज़ कमिंग इन, कैश इज़ योर एसेट। व्हेन यू आर रिसीविंग कैश इज़ इंक्रीजिंग, अल्टीमेटली एसेट इज़ इंक्रीजिंग, इंक्रीज इन एसेट शुड बी डेबिटेड, सो यू विल राइट name of cash on debit side. And from whom you are receiving this cash, the person is Suhail was account receivable, that is why you are receiving amount from Suhail. If you have received the amount, it means he is no more your account receivable. Account receivables are asset. If account receivable are decreasing, asset is decreasing, decrease in asset should be credited, so you will write account receivable and name is Suhail. You will write the name of Suhail on credit side and he is your account receivable. Suhail's name you have credited because he was your account receivable at first stage, and now you have received the amount, he is no more your account receivable. Decrease in account receivable, decrease in asset, it means it should be credited, so you have written name of Suhail on credit side. 1,000 you have received, okay, you will write 1,000 amount over here and same amount you will write over here. 10A is completed. And then what is happening, a check of 6,000, half of entry is you have received, और अब आप ये पढ़ेंगे receive what, received a check of rupees 6,000. Since up till this entry, up till this amount, up till this word, we haven't deposited that check into the bank, we have just received. So what you will do, you were supposed to write check over here. Why? Because you are receiving check. In accounting we do not write
check since we have received a check we will consider it as an asset. तो हम उसे समझ लेंगे कि जैसे हमारे पास कैश आया एक्चुअली आपके पास वो चेक था। आप चाहे यहाँ पर लिखें या चेक ना लिखें तो भी कोई बात नहीं। कहाँ से चेक आया? वो सुहेल से था, और जो एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ की वही एक्सप्लेनेशन यू वुड बी यूज्ड ओवर हियर। सुहेल वाज अकाउंट रिसीवेबल, यू हैव रिसीव्ड check from him, now he is no more your account receivable, no more your asset is decreased. Decrease in asset should be credited, so you will write name of Suhail over here, who was your account receivable at first stage. Now let's see what was amount of check. It is 6,000, so you will write 6,000 over here, and same amount you will write on credit side. ऑलराइट, अच्छा जी, अब इसकी डेट क्या है? ये हम 10 ही करी जा रहे हैं, और 10 का इसको बी पार्ट समझ लें। अब हम अगला पार्ट कंप्लीट करते हैं। एंड डिपॉजिटेड द चेक इनटू द बैंक। चेक को आपने बैंक में जमा करवा दिया। नाउ प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग। दिस वाज योर चेक, यू हैव गिवन दिस चेक टू योर बैंक। समझ में आ रही बात? ये चेक था, ये चेक ही अब आपके पास गया, जिसको आपने फॉर द टाइम बीइंग समझा हुआ था कि ये आपके लिए कैश है। अब आपने वही कैश आपके पास से चला गया जो चेक था, और कहाँ गया? इन योर बैंक अकाउंट। व्हेन यू विल डिपॉजिट अ चेक इनटू योर बैंक अकाउंट, इट मीन्स योर बैंक अकाउंट इज इंक्रीजिंग, योर एसेट इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज इन एसेट शुड बी डेबिटेड, दैट इज वाई यू विल राइट नेम ऑफ बैंक on debit side. Consider it 10C. Now I will share something else as well. And what? इसकी जगह पर आप एक और एंट्री भी कर सकते थे। आप लिखें और एक और एंट्री की जा सकती थी। यहाँ क्या किया? पहले आपने चेक रिसीव किया और फिर डिपॉजिट करवाया। तो आप एक ही दिन में जब चेक रिसीव कर रहे हैं और डिपॉजिट भी करवा रहे हैं, तो एक्चुअली इंक्रीज किधर हुआ? बैंक अकाउंट के अंदर। और हाउ दैट increase is possible into your bank account? You have received a check from your account receivable, so you will write name of Suhail over here, who was your account receivable. अच्छा, आप ध्यान रखिएगा, there was first entry cash to Suhail when you have received your check and then you have deposited. So instead of these two entries, what you can do, you can make a single entry which is bank to Suhail. अभी तो हम चूँकि इसे कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहे, तो हम इन सारी एंट्रीज़ को अलग-अलग किया। तो इन दो एंट्रीज़ की जगह आप एक एंट्री भी कर सकते थे, और फिलहाल हमने चूँकि वो कर दी हैं अलग-अलग, तो कंपाउंड एंट्री को हम छोड़ देते हैं और अब हम आगे बढ़ेंगे। ओके, इसको भी अब हम ख़त्म कर देते हैं। इस तरह से आपने 10th एंट्री कंप्लीट की। यही वाले चेक की अमाउंट इधर आ जाएगी, क्योंकि वही चेक आपने बैंक में जमा करवाया। 6,000 इधर आएगा और 6,000 इधर आएगा। इस तरह से 10C कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। वी हैव 12th एंट्री, और वहाँ पर क्या है? पेड निसार बाय चेक। पेड निसार बाय चेक, वी आर पेइंग to our account payable through a check. When you will issue a check to your account payable will go to your bank account, will present that check with which your amount would be withdrawn from your bank account. जब आपकी रकम आपके बैंक से निकाल ली जाएगी, तो अमाउंट प्रेजेंट इन योर बैंक अकाउंट वुड बी डिक्रीज्ड। Decrease in bank account means decrease in asset. Decrease in asset should be credited, that is why you will write name of your bank account on credit side. ओके, यू हैव पेड दिस चेक टू योर अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल वाज योर लाइबिलिटी। किसको आपने पे किया है? निसार को पे किया। निसार वाज योर अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल वाज योर लाइबिलिटी। व्हेन यू हैव पेड दिस चेक, इट मीन्स योर लाइबिलिटी हैज़ बीन डिक्रीज्ड। डिक्रीज इन लाइबिलिटी शुड बी डेबिटेड, दैट इज वाई योर अकाउंट पेएबल मीन्स निसार वी आर राइटिंग ऑन डेबिट साइड ड्यू टू डिक्रीज इन लाइबिलिटी। इस एंट्री की आप डेट चेक करते हैं, दैट इज़ 12, और साथ में आपने मेंशन करनी है कि कितने का चेक आपने 12th एंट्री में दिया, और वो आपको नज़र आ रहा है 5,200. सो व्हाट यू विल डू, यू विल राइट 5,200 हेयर एंड
5,200 over here. Okay, 12th entry completed. Let's go to the next entry, entry number 15. And what it is? Purchase goods and paid check. What we are doing? We are buying goods and payment is being made by check. When you will buy goods are coming in, it means goods are increased. You were supposed to write here goods or inventory or store, raw material, whatever you like, you can write over here. You can write material over here. So आप कर क्या रहे हैं? You are buying your goods. If you are buying your goods, it means there is an increase in goods. Inventory, stock और material एक तरह से आपके assets होते हैं. तो अब इन्वेंट्री में इंक्रीज हो गया, गुड्स में इंक्रीज हो गया, आपको लिखना चाहिए था यहाँ गुड्स, बट वी डू नॉट राइट गुड्स इन अकाउंटिंग. इन प्लेस ऑफ गुड्स वी राइट वर्किंग. एंड व्हाट इज वर्किंग? दैट इज परचेज, बिकॉज वी आर बाइंग गुड्स. तो अब जो बाकी चीज़ें हैं आप ये अकाउंटिंग में नहीं लिखते, आप इनको चाहे ना लिखें. हमने चीज़ें परचेज कर ली हैं और पेमेंट इज़ बीइंग मेड बाय चेक. The person from whom you have bought these commodities, you have issued a check to that person, and what the person will do, he will present that check to your bank account, and with which he will withdraw amount from your bank account. Amount present in bank would be decreased. Decrease in bank account means decrease in asset. Decrease in asset should be credited, so you will write the name of your bank on credit side because amount present in your bank has been decreased. Now we will see the date, which is 15. Mention here 15. We will check the amount of 15th, that is 11,600. so you will put 11,600 here, 11,600 here और 11,600 ही आप इधर पोस्ट कर देंगे. लें जी, अब आपकी 15वीं एंट्री भी कंप्लीट हो गई और वी विल सीक द नेक्स्ट एंट्री विच इज़ 16. और अब 16 में क्या हुआ? विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑनर पर्सनल यूज़. ये हमारी लाइन है, विदड्रॉ फ्रॉम बैंक बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज़. पहली बात तो यहाँ तक आप देखें, विदड्रॉ फ्रॉम बैंक. इफ़ यू आर ड्रॉइंग अमाउंट फ्रॉम योर बैंक, व्हाट विल हैपन? If you are going to withdraw amount from your bank, amount present in your bank account would be decreased. Bank is your asset. If bank amount is decreasing, mean asset is decreasing. Decrease in asset should be credited. So you will write name of bank over here because your amount present in your bank is decreased. And where that amount had gone, proprietor had used it for personal purpose. Any amount which is used by the proprietor for personal use is called what? Drawings. And why we are writing drawings on debit side? Since we were liable to pay the amount to the owner of the business, which is capital. And when owner had drawn that amount, it means our liability has been decreased because we were already liable to pay the amount. Business is liable to pay the amount to the proprietor. The amount which is provided by the proprietor is called capital, and we were liable to pay the capital. And what proprietor had done? He had withdrawn amount from the business. It means his capital has been decreased. Capital is liability. When liability has been decreased, it should be written on debit side. So we have written drawings on debit side. अब इसकी डेट चेक करते हैं. 15 के बाद 16 इसकी डेट है. You will write the date over here 16. चलिए, उसके बाद इसकी अमाउंट चेक करते हैं. And that amount is 3,000. You will put 3,000 here and 3,000 here. After 16, now let's see what is happening. 16 के बाद you are working on 20. Received cash as commission. Hopefully you have understood. You have received cash. If you are receiving cash, it means amount present in your hand is increasing. Cash is your asset. If asset is increasing, it should be written on debit side. So what you will do, you will write cash on debit side because cash is increasing. And why you are receiving cash? It is commission. Commission is your income. Income side is always been credited. So you will write name of commission
on credit side. Now you will see the date, it is 20. You will put 20 date over here and check the amount of commission. It is 1200. You will post 1200 over here, and 1200 same amount would be posted over here. 20th entry has been completed. Now let's see what is happening next. We will go to 23, and what 23 is saying, received cash in full settlement from Khalid and sent the same into the bank. Okay, and what is amount? Received cash from Khalid. अब आपको क्या करना है, just search out if Khalid is present in our question. What we are doing? Okay, Khalid is not present in the question. It is the sole entry, single entry. And what entry it is? You have received from Khalid and sent to the bank. इसकी भी आप चाहें तो 2 एंट्रीज भी कर सकते हैं और एक भी एंट्री कर सकते हैं. मैं आपको दोनों समझाऊंगा. सबसे पहले खालिद से आपने कैश रिसीव किया. When you will receive cash from Khalid, cash is coming in, cash is your asset. You are receiving cash, mean asset is increasing, increase in asset should be debited. What you will do, you will write name of cash over here. From whom you are receiving cash? Khalid. Khalid was your account receivable. Since you have received the amount from Khalid, it means he is no more your account receivable. That means no more your asset. Asset is decreasing, decrease in asset should be credited. So what you will do, you will write name of Khalid on credit side. He was your account receivable, and now you have written on credit side, it means asset has been decreased or account receivables have been decreased. And what amount you have received from Khalid? That is 1000 mentioned over here. So you will write 1000 here and 1000 here, और इस 20 के बाद की जो डेट है वो मेंशन करेंगे, दैट इज़ 23. तो आप यहाँ पर 23 पुट आउट कर देंगे, सॉरी 23. अब हम नेक्स्ट काम करेंगे. 23 के बाद क्या है? नहीं, एक काम हमारा और रह गया हुआ यहाँ पर, एंड सेंट द सेम इनटू द बैंक. अब आपने उसको बैंक में भी जमा करवा दिया. आपने अभी जो कैश समझा था उसको आप पहले फॉलो करें. ये कैश आपको रिसीव किया और वही कैश आपने कहाँ भेज दिया? बैंक में. अब ये इस चीज़ की एंट्री करनी है. व्हेन यू हैव पुट दैट कैश इनटू योर बैंक अकाउंट, अमाउंट प्रेजेंट इन बैंक वुड बी इंक्रीज्ड. Bank is your asset. If bank amount is increasing, mean asset is increasing. Increase in asset should be debited. So what you will do, you will write name of bank on debit side because it has been increased. So what is going out? अभी आपको मैंने मेंशन किया, you have received the cash and same cash you have deposited into the bank. तो cash is going out. So what you will do, cash is going out mean cash is decreasing, cash is also your asset. Decrease in asset should be credited. So you will write cash on your credit side. Date would be same. यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं, ये 23 का B पार्ट है और वो 23 का A पार्ट सपोज कर लेते हैं, और यही अमाउंट चूँकि जमा करवाई है बैंक में. सो यू विल राइट सेम अमाउंट ओवर हेयर and 1000 would be written over here. अच्छा, अब आप एक और काम कर सकते हैं. मैंने जैसे आपको समझाया है कि एक एंट्री भी की जा सकती है, वो कंबाइन. आपने देखें पहले चेक रिसीव किया और एक्चुअली आपने क्या किया? डिपॉजिट करवा दिया. तो फिर अल्टीमेट पर्पस क्या हुआ? यू हैव डिपॉजिटेड दैट कैश इनटू योर बैंक. अमाउंट प्रेजेंट इन योर बैंक अकाउंट हैज़ बीन इंक्रीज्ड. इंक्रीज इन बैंक मीन्स इंक्रीज इन एसेट. इंक्रीज इन एसेट शुड बी डेबिटेड. सो यू हैव रिटर्न बैंक ऑन डेबिट साइड. अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि कहाँ से वो आपने पैसे रिसीव किए थे? यू हैव रिसीव दैट कैश फ्रॉम खालिद. खालिद वाज योर अकाउंट रिसीवेबल. इफ़ यू हैव रिसीव दैट कैश, इट मीन्स ही इज़ नो मोर योर अकाउंट रिसीवेबल, नो मोर योर एसेट. एसेट हैज़ बीन डिक्रीज. डिक्रीज इन एसेट शुड बी क्रेडिटेड. सो यू हैव रिटर्न द नेम ऑफ खालिद हु वॉज योर अकाउंट रिसीवेबल, because he is no more our account receivable. Decrease in account receivable, decrease in asset should be credited. आप चाहें तो इन दो एंट्रीज की जगह पर
ये 2 एंट्रीज आपने की हैं, इनकी जगह पे सिर्फ ये एक एंट्री भी हो सकती है। ये आपकी मर्ज़ी, आप कंबाइन कर लें, आपकी मर्ज़ी आप अलग-अलग करें, विच एवर इज़ फेवरेबल फॉर यू, जस्ट गो फॉर दैट। अभी चूँकि हमने इसकी अलग-अलग एंट्री कर लिया तो फिर हम इसको अभी थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देते हैं, और ये एंट्रीज़ हमें एज इट इज़ चाहिए, इसलिए इनको हम सिंपल कर देते हैं। 22 एंट्री हमारी हो गई हैं। 23rd डेट थी तो वो 22 लिखी हुई है, यहाँ पर 23rd बना देते हैं। तो 23rd के बाद अब हमारे पास क्या है, 29 अब पढ़ेंगे, जहाँ पर अब हम विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। जाहिर है कि बैंक से आप क्या निकालेंगे, पैसे। इफ़ यू आर गोइंग टू ड्रॉ अमाउंट फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, व्हाट विल हैपन, अमाउंट प्रेजेंट इन योर बैंक अकाउंट वुड बी डिक्रीज। इट मीन्स बैंक has been decreased, bank is your asset, means asset decrease in asset should be credited, so you will write name of bank account on credit side because amount present in your bank account has been decreased। और आपने किया क्या, उस अमाउंट को ड्रॉ करके फॉर ऑफिस यूज, पैसे आपने ऑफिस यूज के लिए वहां से निकाले हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या आएगा आपके पास, कैश इज योर एसेट व्हेन यू आर रिसीविंग कैश, it means cash is increasing, asset is increasing, increase in asset should be debited, so you will mention cash on debit side। इसकी ज़रा डेट पर हम पढ़ लें क्या लिखा हुआ है, 29 ही आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, और साथ में इसका कैश भी हम पता कर लेते हैं। 29 का कैश है 10,000, so you will post 10,000 here and same amount you will post on credit side। 29 entry has been completed। Okay, after 29 we have 30th, and what 30 is saying, paid salary। when you will pay salary, cash will be going out, it means cash present in your pocket or cash in hand would be decreased। cash is your asset, if you are paying, asset is decreasing, cash is decreasing, decrease in asset should be credited, so you will mention cash on credit side because it is decreasing as an asset। And what you have done, you have paid salary, salary is your expense, expenses are always debit, so you will write name of salary on debit side as an expense। इसकी डेट क्या थी वो आप साथ में देख लें, 30 है, तो 30 आप यहाँ पर पोस्ट कर दें। उसके बाद इस सैलरी की अमाउंट भी हमने लिखनी है, अमाउंट ऑफ सैलरी इज़ 15,000, you will put 15,000 on debit side and same amount you will put on credit side। all right ji, after 30 what is happening, again 30 next entry is what, you have paid rent, when you are paying your rent, cash is going out, cash is your asset, due to payment cash is decreasing, mean asset is decreasing, decrease in asset should be credited, so you have mentioned cash on credit side। and why you are paying cash, you have paid this cash for rent, rent is your expense, expense side is always debited, so you will mention rent on debit side। date was 30, same date, and amount of rent is 800, so you will mention 800 over here and 800 over here। now you have seen all of the entries right from the beginning, we have started from 1 and then we have reached to 30th, all entries are written and completed, and what we will do, we will post these journal entries which are present over here and will post into the cash book. This is our target, and you can take a short break, you can pause this video, and when you will come back, please take little time to review these journal entries, and then we will start to post it। Alright guys, now we are going to post these journal entries into cash book। rule is very simple, you will seek only
two elements, cash and bank. If cash and bank are present on debit side, you will post on debit side. If cash and bank are present on credit side in general, you will post on credit side. This is very simple thing, and you must not be having any complication. Procedure is very simple, very easy. You will see cash and bank on debit side, post debit side, cash and bank on credit side, post on credit side. Simple rule, just remember. So first entry we are doing, and we have seen cash on debit side. And what you will do, you will go to debit side and you will write the amount present is 1,34,400 on debit side. And why cash is being debited, इसके जो opposite चीज़ है ना उसको आपने देखना है, that is balance. So you will write name of balance over here and will mention date, which is 1. In this way you have completed it. Only cash was available in this entry and nothing else was present, so it means cash is being posted, entry is completed. यहाँ पर आप इसको ग्रीन सिग्नल दे देंगे, एंट्री कंप्लीट हो गई है. अब जो नेक्स्ट एंट्री है वो 2 की है. इसमें देखें 2 चीज़ें आ रही हैं. ऊपर वाली एंट्री में सिर्फ एक चीज़ थी, नीचे वाली एंट्री के अंदर आपको 2 चीज़ें मिल रही हैं, बैंक भी और कैश भी. तो पहले आप बैंक को देखें. बैंक यहाँ पर डेबिट हो रहा है 1,00,000 रुपये से. तो यहाँ पर आएँ और बैंक को डेबिट साइड पर पोस्ट कर दें 1,00,000 रुपये. और कीप इट इन माइंड, आपने पहले अमाउंट पोस्ट करनी है. यू हैव पोस्टेड अमाउंट एट फर्स्ट स्टेप. अमाउंट पोस्ट करने के बाद आपने सोचना है क्या हो रहा है आगे, किस वजह से हो रहा है. टू कैश, तो यहाँ पर मेंशन कर दें टू कैश. ऑपोजिट साइड पे जो कुछ लिखा है बस उसको आपने लिख देना है. अब आप इसकी डेट मेंशन करें जो कि 2 है. सेम डेट यू विल राइट ओवर हियर. हाफ ऑफ एंट्री हैज़ बीन कंप्लीटेड. एंट्री वाज बैंक टू कैश. आपने यहाँ बैंक वाली एंट्री कंप्लीट कर दी. अब कैश में कैश वाली एंट्री को कंप्लीट करना है. कैश यहाँ पर क्या हो रहा है, कैश इज़ क्रेडिटेड ओवर हेयर. यू विल गो टू द क्रेडिट साइड ऑफ कैश. यहाँ पर आएँ और इस जगह पर भी आप मेंशन कर दें 1,00,000 अमाउंट है सेकेंड एंट्री की. और किस वजह से कैश क्रेडिट हो रहा है, बैंक की वजह से. तो आप यहाँ पर बैंक को मेंशन कर देंगे, बट यू विल यूज़ वर्ड बाय बैंक. और इसकी जो डेट है वो 2 है, तो आप यहाँ पर 2 डेट मेंशन कर दें. ये एंट्री अब कंप्लीट हो गई. आपने इसके डुअल इफ़ेक्ट कर दिए. इसको हम ग्रीन सिग्नल देते हैं ताकि ये दोबारा इसको देखना ना पड़े. 2 एंट्रीज़ हमारी कंप्लीट हो गई. अब हम 5 पे हैं. चेक करें इधर कैश और बैंक किधर आ रहा है. तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एस्पेक्ट नज़र आ रहा है, दैट इज़ योर बैंक अकाउंट, और वो क्रेडिट हो रहा है. तो यू विल गो टू क्रेडिट साइड ऑफ योर बैंक अकाउंट. ये क्रेडिट साइड है. और फिर आप इसकी अमाउंट चेक करें 9,000 है. यहाँ अमाउंट पोस्ट कर दें 9,000. व्हाट यू आर लुकिंग एट इज़ यू आर पोस्टिंग योर अमाउंट ऑन फर्स्ट स्टेज. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ डू नॉट राइट एनी इंग्लिश एनी डेट एट फर्स्ट स्टेप. Just go and write the amount on the right column, because actual purpose of making cash book is to tackle the amount. तो अमाउंट नहीं आपकी गलत होनी चाहिए. पहले आपने अमाउंट पोस्ट कर देनी है. रूल वही, डेबिट तो डेबिट, क्रेडिट तो क्रेडिट. बैंक डेबिट है तो डेबिट साइड, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड. अब यहाँ बैंक क्रेडिट साइड पे हो रहा था 9,000 के लिए. और क्यों डेबिट हो रहा था, क्योंकि फर्नीचर आपकी डेबिट साइड पे है. तो आप इसका रेफरेंस मेंशन कर दें यहाँ पर बाय फर्नीचर. राइट. अब इसकी डेट भी साथ में मेंशन कर दें. डेट वाज 5, मेंशन डेट एज 5. ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई. इसको भी हम अब ग्रीन सिग्नल दे देते हैं. अच्छा जी, अब नेक्स्ट एंट्री पढ़ें जो कि हमारी 6 की है. इस पूरी एंट्री के अंदर दोनों में से सिर्फ एक ही चीज़ है, एंड व्हाट इज़ दैट, कैश. कैश हेयर इज़ डेबिट. यू विल गो टू द डेबिट साइड ऑफ योर कैश और वहाँ पर अमाउंट चेक करें 2,000 है. तो पहले अमाउंट पोस्ट कर दें यहाँ पर 2,000. ओके. अब ये 2,000 कैश क्यों डेबिट हो रहा है, सेल की वजह से. तो यू विल मेंशन हेयर 2 सेल्स. एंट्री कंप्लीट हुई. अब इसकी डेट चेक करें जो कि 6 है. वो 6 इधर आप साथ में मेंशन कर दें. एंट्री कंप्लीट हो गई. आप इस 6 को भी ग्रीन सिग्नल पुट कर दें. अब हम नेक्स्ट एंट्री करें 10A. वहाँ पर देखें दोनों जगह पर सिर्फ एक ही कैश है.
एंट्री के अंदर और वो डेबिट हो रहा है। आप डेबिट साइड पे आए, 1000 यहाँ पर पोस्ट करें। और ये 1000 क्यों डेबिट साइड पे लिखा? क्योंकि सुहेल की वजह से। यू विल राइट सुहेल ओवर हेयर, टू सुहेल। एंड हु वाज सुहेल? ही वाज योर अकाउंट रिसीवेबल। और आपने डेबिट कर दिया 1000 से। वापस जाएं, डेट चेक करें, 10A है, यहाँ पर मेंशन कर दें 10A। इस तरह से ये एंट्री 10A वाली भी कंप्लीट हुई, इसको भी आप ग्रीन कर दें। अब हमारी 10B की एंट्री है, यहाँ चेक करें कैश और बैंक में सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि कैश है, और कैश डेबिट हो रहा है 6000 से। कैश की डेबिट साइड पे आए, यहाँ 6000 लिख दें। ऑलराइट, अब ये 6000 आपने क्यों डेबिट किया? क्योंकि सुहेल से आपको पैसे आ रहे हैं या चेक आ रहा है, तो आप यहाँ पर सुहेल को दोबारा मेंशन कर दें। और सुहेल कौन था? आपका अकाउंट रिसीवेबल था। इसकी आप डेट मेंशन करें तो वो 10B है। आप यहाँ पर इसकी डेट मेंशन कर दीजिए 10B। एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो गई, तो आप 10B को भी ग्रीन कर दें। ओके, अब नेक्स्ट एंट्री 10C। इसके अंदर आप देखें दोनों चीज़ें आ रही हैं, आपके पास बैंक भी आ रहा है और कैश भी आ रहा है, दोनों मौजूद हैं। तो आप पहले क्या करेंगे? सिर्फ बैंक को देखेंगे। बैंक क्या हो रहा है? डेबिट 6000 से हो रहा है। बैंक की डेबिट साइड पे आएँ और मेंशन करें 6000। अब बैंक के डेबिट होने की रीज़न क्या है? क्योंकि कैश की वजह से बैंक डेबिट हो रहा है, यहाँ पर मेंशन कर दें टू कैश। अब इसकी आप डेट भी चेक कर लें, डेट है 10C। यहाँ पर आप इसकी डेट मेंशन करें 10C। ओके, 10C डेट एंट्री कंप्लीट हुई, इसको आप ओके कर दें ग्रीन करके। अब आपने 12 में देखा है। ओके, 10C के अंदर आपने बैंक को डेबिट किया, यहाँ पर जो सेकंड साइड थी वो कैश क्रेडिट भी हो रहा है 6000 से। तो आप क्या करेंगे? क्रेडिट साइड कैश पे जाएंगे, वहाँ पे आप 6000 मेंशन करेंगे। ये 6000 जो था क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके ऑपोजिट बैंक लिखा हुआ है। तो आप इंफॉर्मेशन के लिए यू विल मेंशन नेम ऑफ बैंक ओवर हेयर। इसकी डेट क्या लिखी हुई है? 10C। तो साथ में आप डेट मेंशन कर दें 10C। ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं 12 पे। 12 में आप देखें कैश और बैंक में कौन सी चीज़ अवेलेबल है आपको, तो आपको पता चल रहा है सिर्फ बैंक अकाउंट है जो क्रेडिट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे? क्रेडिट साइड पे जाएंगे बैंक की, और यहाँ अमाउंट आप पोस्ट करेंगे जो कि है 5200। अब अमाउंट यहाँ 5200 मेंशन करें, और 5200 में आपने बैंक को क्रेडिट किया है। क्यों क्रेडिट किया? निसार की वजह से। तो आप यहाँ पर बाय निसार लिख दें जो कि आपका अकाउंट पेएबल था। इसकी 5200 की डेट आप देखें क्या आ रही है? 12। यहाँ पर डेट मेंशन कर दें 12। ओके हो गई एंट्री। 12 है। एंट्री हैज़ बीन कंप्लीटेड ऑफ 12। वहाँ पे चूँकि सिर्फ एक ही चीज़ थी बैंक, वो आपने पुट कर दिया। 12 को भी आप ग्रीन कर दें। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या आ रहा है? 15 में आपने चेक करना है कैश और बैंक। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ आ रही है, वो बैंक है। बैंक क्रेडिट हो रहा है 11600 से। बैंक की क्रेडिट साइड पे आए, अमाउंट पोस्ट करें 11600, और यहाँ चेक करें ये 11600 जो है ये किस वजह से हो रहा है? परचेज चूँकि डेबिट हो रही है। तो आप यहाँ पर मेंशन कर दें बाय परचेज। इसकी डेट भी आप चेक करें, डेट इज़ 15। यहाँ पर डेट आप 15 डाल दें। इस तरह से ये भी एंट्री कंप्लीट हो गई। अगर 15 में सिर्फ एक ही चीज़ थी और वो कंप्लीट कर लिया है, तो इसको भी ओके कर दें। अब आप आ रहे हैं 16 में, यहाँ चेक करें आपको सिर्फ एक ही एंट्री मिल रही है, बैंक क्रेडिट हो रहा है 3000 से। बैंक की क्रेडिट साइड पे हैं और मेंशन कर दें 3000, और चेक करें कि ये 3000 क्यों हो रहा है। क्योंकि ड्राइंग्स की वजह से बैंक क्रेडिट है। आप उसका रेफरेंस यहाँ पे मेंशन कर दें बाय ड्राइंग्स।
ऑलराइट, अब इसकी डेट भी आप चेक करें क्या है, वो 16 है। सो यू आर नीडेड टू राइट डेट ओवर हेयर। 16 में सिर्फ एक ही एंट्री थी बैंक की, वो आपने कंप्लीट कर दी, ओके करें। अब नेक्स्ट आपकी 20th एंट्री है, वहाँ पे चेक करें कैश और कमीशन में सिर्फ कैश ही है जिसको आपने एंटर करना। व्हाट आई हैड सेड अर्लियर, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू एंटर ओनली 2 एलिमेंट्स, कैश एंड बैंक, एंड रिमेनिंग इफ यू हैव सीन commission, if you have seen drawings, if you have seen purchase, if you have seen nisar, we are not related with these elements, we are related with cash and bank only. तो 20th एंट्री कैश डेबिट हो रहा है 1200 से, कैश की डेबिट साइड पे आए एंड मेंशन हेयर 1200 और 1200 क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि कमीशन आपको रिसीव हुआ है, तो मेंशन हेयर कमीशन। अब आप इसकी डेट भी साथ में मेंशन करें जो कि 20 है, राइट 20 ओवर हेयर। 20th एंट्री में ओनली 1 एलिमेंट वाज प्रेजेंट, कैश यू हैव रिटन, इट मींस एंट्री हैज़ बीन कंप्लीटेड, गेट इट ग्रीन। नाउ वी आर डूइंग 23A, और इस एंट्री के अंदर लुक वी हैव ओनली 1 एलिमेंट दैट इज़ कैश विच इज़ डेबिटेड, तो कैश की डेबिट साइड पर आएँ और राइट डाउन 1000 एंड सी वाई 1000 इज़ बीइंग डेबिटेड ड्यू टू खालिद, नज़र आ रहा है हमें, तो यहाँ मेंशन कर दें टू खालिद। अब इसकी डेट भी आप देखें क्या है, 23A, तो यहाँ पर आप 23A मेंशन कर दें, और 23A में चूँकि एक ही कैश था एंड यू हैव पोस्टेड दैट कैश, इट मीन्स 23A हैज़ बीन कंप्लीटेड, ग्रीन कर दें। अब नेक्स्ट एंट्री आप चेक करें, both elements are present, bank and cash. What you will do, you will enter both bank and cash into your cash book. So 2 entries, 2 posting are needed. First posting is for bank is debited with 1000. You will go to your bank account, will write 1000 over here. Now check why your bank account is being debited due to cash, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें टू कैश। इसकी डेट आप साथ में मेंशन करें 23B, तो यहाँ पर 23B लिख दें। एंट्री अभी कंप्लीट नहीं हुई, 23B में ही आप जाएं, बैंक को आपने डेबिट कर दिया हुआ है, ओके। और अब कैश इज़ नीडेड टू बी क्रेडिटेड, यहाँ पे कैश क्रेडिट हो रहा है 1000 से, तो गो क्रेडिट साइड कैश, और वहाँ पर आप अमाउंट इसकी लिख दें 1000 है, put 1000 over here, and now see why 1000 is being credited, वो आपको पता चल रहा है बैंक डेबिट हो रहा है इस वजह से, तो यहाँ पर आप लिख दें रेफरेंस के तौर पे बाय बैंक। अब इसकी डेट भी साथ में मेंशन कर दें जो कि 23B है, यहाँ डेट लिख दें 23B। अब 2 एंट्रीज आपके पास थी, बैंक एंड कैश। You have posted bank account on debit side, cash account on credit side, entry has been completed, get it green. Now we are on 29th entry where both elements are present, cash and bank both are present. We will post cash on first step, cash is being debited with 1 lakh rupees. 1 second, इसको ज़रा confirm कर लें 29 में क्या हुआ है। Withdraw from bank for office use, it is 10,000. ओके, इट इज़ 10,000। कैश इज़ बीइंग डेबिटेड, तो आप क्या करेंगे, कैश की डेबिट साइड पे आएँ, यहाँ पर आप 10,000 अमाउंट पोस्ट करें। और 10,000 क्यों डेबिट हो रहा है, उसकी रीज़न आपको पता चल रही है कि बैंक की वजह से डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पर मेंशन कर दें टू बैंक, और साथ में इसकी डेट मेंशन करें कि जो कि 29 है, ओके, राइट डाउन 29। अब इसका हाफ पार्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड, क्या यहाँ पर कैश डेबिट हो रहा था, आपने कैश की डेबिट साइड पे पोस्टेड द अमाउंट, और अब सेकंड इसका एलिमेंट है बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो यू विल गो क्रेडिट साइड ऑफ योर बैंक, और यहाँ पर आप पहले अमाउंट पोस्ट कर दें जो कि है 10,000 लिखें, और देखें यहाँ पर बैंक क्यों क्रेडिट हो रहा है, वो आपको समझ आ रही है कि कैश की वजह से,
तो आप यहाँ आएँ, बाय कैश एज अ रेफरेंस आप मेंशन कर दें, इसकी डेट चेक करें 29 है, साथ में आप यहाँ पर 29 डेट मेंशन कर दें। देयर वर 2 एलिमेंट्स ऑफ 29, एक यहाँ लिख दिया और एक 29 यहाँ लिख दिया। इसका मतलब 29 में बोथ एलिमेंट्स हैव बीन पोस्टेड, 29 इज कंप्लीटेड, गेट इट ग्रीन। अब 30th की बारी है, यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिसको फॉलो करना है, एंड व्हाट इज़ दैट, कैश। कैश इज़ क्रेडिटेड, तो कैश की साइड पर आएँ, क्रेडिट साइड पर आएँ और अमाउंट पोस्ट कर दें, एंड दैट इज़ 15,000। सो यू आर नीडेड टू राइट 15,000 ओवर हेयर। सैलरी की अमाउंट इतनी ज़्यादा है, ओके 15,000 ही है। सो यू हैव रिटन 15,000 ओवर हेयर, क्यों कि आपने कैश को क्रेडिट किया, किस वजह से, सैलरी की वजह से। तो आप यहाँ आएँ और मेंशन कर दें बाय सैलरी, और इसकी डेट भी साथ में लिखें, कितनी है, 30th डेट है, वो पुट कर दें। ओके, ये एंट्री अब कंप्लीट हो गई। हमने एक ही एलिमेंट था कैश, और क्रेडिट साइड पे आपने 15,000 पोस्ट कर दिए हुए, एंट्री हैज़ बीन कंप्लीटेड, तो इट्स ओके। अब अगली जो 30th एंट्री है, इसमें भी चेक करें, दोनों में से सिर्फ एक ही एलिमेंट है विच इज़ एसोसिएटेड विद आर कैश बुक। कैश क्रेडिट हो रहा है 800 रुपये से, यहाँ क्रेडिट साइड पे आएँ और 800 रुपया क्रेडिट कर दें, और बताएं क्यों 800 रुपया क्रेडिट हो रहा है, किस वजह से, क्योंकि आपने रेंट पे किया है। आप यहाँ रेफरेंस दे दें बाय रेंट। अब इसकी डेट भी मेंशन कर दें, लास्ट डेट थी 30, तो 30 यू आर गोइंग टू राइट ओवर हियर। लें जी, व्हाट वी हैव डन फ्रॉम हेयर, वी हैव स्टार्टेड आर जनरल एंट्री, ऑल जनरल एंट्रीज वर कंप्लीटेड। ये एक रह गई, इसको भी ग्रीन करना था, ग्रीन कर दें। ऑल जनरल एंट्रीज हैव बीन कंप्लीटेड ओवर हेयर, एंड व्हाट वी हैव डन, वी हैव पोस्टेड दीज एंट्रीज इनटू आवर कैश बुक वन बाय वन, ऑल स्टेप्स वर कंप्लीटेड, और हमने अब यहाँ पर इनकी सारी एंट्रीज को पोस्ट भी कर दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, now let's start the next step, which is balancing. Just writing down the amounts, or just writing down, or just posting the amounts into the ledgers or into the cash book, though it's a good thing, it's appreciable thing, but it's not enough. जब तक आप बैलेंस नहीं करेंगे तब तक इन अमाउंट्स के लिखने का यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम क्या करने लगे हैं, द टर्म इज़ बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका कैश का ये कॉलम है, यू आर गोइंग टू सम दिस कॉलम एंड राइट ओवर हेयर। रफ वर्क है, इसको यहीं पे लिखना है आपने पहले अलग से, और क्वेश्चन में शामिल नहीं करना। यहाँ पर मैं सम करने लगा हूँ फ्रॉम फर्स्ट अमाउंट टू लास्ट अमाउंट विच आई हैव सीन। ये पूरा जो ग्रीन हुआ है, ये पूरी अमाउंट्स को मैं सम करूंगा। अगर फ़र्ज़ करें कि आपको ये बात नहीं समझ आ रही है मैं कैसे सम करूँ, तो लीव इट आउट, इट्स नॉट योर टॉपिक, इट्स टॉपिक एसोसिएटेड विद कंप्यूटर साइंसेज एंड यू आर कॉमर्स स्टूडेंट्स। आप छोड़ दें कि ये अमाउंट हमारी यहाँ पर कैसे आ रही है। ओके, व्हाट यू हैव डन, यू हैव एडेड ऑल द अमाउंट्स प्रेजेंट ऑन डेबिट साइड ऑफ द कैश एंड हैव रिटन टोटल ओवर हेयर। आपको ज़रूरत नहीं है ये फार्मूला समझने की, आप कैलकुलेटर पे क्या लिखेंगे, 135 + 2 + 1 + 6 + 1200, ईच एंड एवरी अमाउंट यू विल ऐड, एंड सम ऑफ ऑल द अमाउंट्स प्रेजेंट इन दिस कॉलम यू विल राइट एट एनी अदर प्लेस नॉट ओवर हेयर। कहीं पे भी रफ जगह पर आप इसको अमाउंट को लिख दो, और सेम प्रोसीजर आप यहाँ पर कैश की क्रेडिट साइड पे करेंगे। ये आपके पास जो कॉलम है कैश की साइड वाला, ये वाले कॉलम का आपने पूरा टोटल करना है, और उस टोटल को करने के लिए आप एक कैलकुलेटर पकड़ेंगे और बारी बारी सबसे पहले लिखेंगे 1 लाख, फिर उसमें 6,000 ऐड करेंगे, फिर उसमें 1,000 ऐड करेंगे, 15,000 ऐड करते हुए 800 ऐड करेंगे, और मैं इसको यहाँ तक लेके आके जितना भी टोटल है सारी अमाउंट्स को मैंने यहाँ लिख कर फाइनल कर दिया। इस तरह से आपका इधर का टोटल भी आ गया। दिस टोटल इज़ 122 और दिस टोटल इज़ 156। आपने यहाँ पर कैश की डेबिट साइड का टोटल किया, यहाँ लिख दिया, कैश की क्रेडिट साइड का टोटल किया, एंड यू हैव रिटन ओवर हेयर। नेक्स्ट स्टेप इज़ व्हाट, जस्ट कंपेयर दीज टू अमाउंट्स। वन ऑन डेबिट साइड इज़ 15,
one which is on credit side is 1 2, which is larger amount, which is bigger amount. So you will see 1 5 amount, 1,56,600 is the larger amount. Take this amount and write total side of debit of cash, same amount 156,600. एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप जो कैश की क्रेडिट साइड है यू विल राइट सेम अमाउंट, द लार्जर अमाउंट विच वॉज 156,600 ओवर हेयर. ओके, अब आपको ऑब्जेक्शन होगी, यू विल से सर द टोटल ऑफ दिस साइड इज 122 एंड वाई यू हैव रिटन 156. If the total of this column is 122, we were supposed to write 122 over here and we have written 156. तो आपने अच्छी तरह से ये समझना है, दोनों को कंपेयर करना है, दोनों में से जो लार्जर अमाउंट है वो दोनों टोटल्स में आपने वो लिख देनी है. अब आपकी जो ऑब्जेक्शन है उसका हल हमने निकालना है और वो क्या सोल्यूशन है, यहाँ पर टोटल आना चाहिए था 122. जितना भी टोटल कम है आप अपनी तरफ से उसको ऐड करेंगे एंड यू विल नेम इट एज बैलेंस. यही एक स्टोरी है जो आपने सीखनी है. यहाँ पर टोटल 156 नहीं आ रहा, टोटल वॉज 122 और अब आपने क्या करना है, इस 122 को 156 बनाने के लिए जितनी भी अमाउंट कम है यू विल पोस्ट ओवर हियर. एंड हाउ वुड यू नो कि हाउ मच अमाउंट इज लेस, यू विल सी 156,600 was the amount which is larger. You will subtract 122,800 from 156. This could be the balance. और अब आप क्या करें, आप इस पूरे कॉलम का यहाँ पर टोटल करके देख लीजिएगा, दैट टोटल विल बी इक्वलाइज विद 156. यही बैलेंसिंग है. दोबारा स्टेप्स रिपीट कर रहा हूँ. सम ऑफ डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक राइट ओवर हेयर, sum of the amounts present on credit side of the cash book right over here. Compare both. Larger amount you will write on total of both side and you will choose the smaller side. और जो स्मॉलर साइड आप चूज करने के बाद जितनी अमाउंट कम है उसको यू विल पुट ओवर हेयर एंड यू विल राइट इट एज बैलेंस. कैसे पता चलेगा कि कितनी अमाउंट है, तो you will subtract smaller amount from the larger amount, this would be the difference and you will post over here. अब जिनको तो समझ लग गई ओके, और जिनको समझ नहीं लगी एक दफ़ा आप दोबारा देखिए. मैं यहाँ पर यही काम बैंक के लिए करने लगा हूँ जो हमने कैश के लिए किया था. ओके, पहला स्टेप क्या, दोनों साइड का आपने टोटल करना है. तो यू आर समिंग अप ऑल अमाउंट्स प्रेजेंट इन बैंक कॉलम, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी अमाउंट्स होंगी सबको आपने सम कर दिया, उसका टोटल आपके पास ये आ गया 107,000. ऑन द अदर हैंड आप सम करेंगे वॉट एवर अमाउंट इज प्रेजेंट ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक. दिस इज क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक, सो यू विल सम अप ऑल अमाउंट्स प्रेजेंट ऑन क्रेडिट साइड ऑफ योर बैंक अकाउंट. तो दोनों सम फिर दोबारा आ गए. दो स्टेप्स किए हमने, इधर का भी सम कर लिया और इधर का भी सम कर लिया एंड नाउ यू विल मेक कंपैरिजन. इधर सम किया तो इट इज़ 107,000, इधर सम किया तो 38,200. सेकेंड स्टेप किया है, लार्जर अमाउंट विल बी पोस्टेड ऑन टोटल ऑफ बोथ साइड्स. लार्जर अमाउंट कौन सी है, ये 107 है, ये 38 है, तो 107 इज़ द लार्जर अमाउंट. अब आप क्या करेंगे, वही अमाउंट 107,000 यू विल राइट हेयर and you will write same amount over here 107,000. And again simple objection, the total of credit side of bank account was actually 38,800. We have written larger total, so how you will balance it, the difference between these two amounts will be posted over here, with which total of this side will also be equal to 107,000. this is called balancing. बैलेंस कैसे निकालना है, जो बड़ी अमाउंट है लार्जर अमाउंट 107,000 में से जो स्मॉलर अमाउंट है 38,800 ये सब्सट्रैक्ट कर दें तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा. एंड नाउ यू आर सेटिस्फाइड. व्हाट हैपेंड, इफ यू विल टोटल दिस कॉलम इंक्लूडिंग बैलेंस, टोटल विल अगेन बिकम 156,600. तो यूँ आपने बैलेंस निकाल लिए. अब ये नॉर्मली दीज बैलेंसेस आर गिवन इन द क्वेश्चन एज एन आंसर. वो आप चेक करते हैं, ये कैश का आंसर है 33,800. यहाँ आए और आपको नीचे आंसर नज़र आ रहा होगा
कैश बैलेंस का आंसर आपके पास आया 333800 और हमारा कैश बैलेंस का आंसर आया 333800। अब हमने बैंक का आंसर चेक करना है, तो आगे ही बैंक का आंसर लिखा हुआ है, जस्ट कीप फोकसिंग ऑन इट। बैंक बैलेंस इज 68200 और हमारा आंसर भी 68200। इस तरह से हमारी ये कैश बुक कंप्लीट हुई। इसकी शेप यहाँ पर देख लें अच्छी तरह से, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से ओवरव्यू क्वेश्चन का देखें, यहाँ से आपकी जर्नल एंट्री स्टार्ट हुई, स्टेप बाय स्टेप करते 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 आपने सारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट की। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपने यही जर्नल एंट्रीज जो हैं वो कैश बुक में पोस्ट करनी शुरू की। इफ़ कैश और बैंक वाज डेबिट, यू हैव पोस्टेड अमाउंट ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश एंड बैंक। इफ़ अमाउंट प्रेजेंट इन जर्नल एंट्री is present on credit side, so what you have done, you have posted on credit side of cash at bank over here। बाद में हमने टोटल करके बैलेंसिंग कर दी और बैलेंसिंग में बड़ी अमाउंट से छोटी अमाउंट माइनस करके आपने यहाँ लिखनी। और यहाँ पर आपने क्या किया, बैंक की जो बड़ी अमाउंट है बैंक की छोटी अमाउंट को उसमें से माइनस किया और बैलेंस आपने यहाँ पर लिख दिया इन विच। और हमने ये बैलेंस वी हैव चेक्ड आउट द आंसर्स फ्रॉम द बुक एंड वी आर सेटिस्फाइड दैट ऑल एंट्रीज हैव बिन प्लेस्ड इन अ राइट वे। जर्नल एंट्रीज भी ओके थी, तो ही तो आपने इन एंट्रीज से अमाउंट उठा के यहाँ पोस्ट की और वो ठीक है, तभी हमारे आंसर्स भी सारे ठीक हो गए। ओके, आप रिव्यू भी हमने क्वेश्चन का कर लिया है, क्वेश्चन के कैश बुक भी कंप्लीट हो गई है। होपफुली यू पीपल हैव अंडरस्टूड। इवन आफ्टर टेकिंग दिस मच टाइम, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, यू आर वेरी ओपन टू मैसेज, टेक्स्ट, कॉन्टैक्ट, कमेंट, वट एवर डू यू लाइक, यू कैन डायरेक्टली मीट एज वेल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था कैश बुक का। आपका टाइम जो आपने यहाँ पे लगाया है, आई एम वेरी होपफुल कि ये टाइम आपका पॉजिटिव हो। आई हैव एंजॉयड माई वर्क और आई एम होपफुल दैट यू हैव एंजॉयड एज वेल। अब आपसे नेक्स्ट किसी क्वेश्चन के सोल्यूशन पे मुलाकात होगी इंशाल्लाह, एंड अंटिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई एम रिक्वेस्टिंग टू प्रे फॉर मी एज वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। प्लीज़ परमिट मी। अल्लाह हाफिज़।